Hello students, let's get started then. So today we are going to do a chapter of biology, that is of standard 12, enhancement in food production. So as the name suggests कि food production के अंदर enhancement, increment कैसे होगा with the help of biology. We are going to see that. Let's get started then. First, plant breeding. What is plant breeding first of all? Breed करवाना है ना, जैसे कि animals के अंदर breeding होता है to produce डेवलप्ड वैरायटी, वैसे ही प्लांट के अंदर भी ब्रीडिंग होते हैं कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज. सो दिस न्यू प्लांट वेराइटीज व्हिच इज डेवलप्ड it shows better characters, develop product and can withstand different temperature and climate. Usually olden times में क्या होता था, क्रॉप्स अगर रेन लेट, बारिश लेट हुई, क्रॉप डिस्ट्रॉय, अर्ली हुई, डिस्ट्रॉय, नो रेन, ड्रॉट, डिस्ट्रॉय, फ्लड्स हुए, डिस्ट्रॉय, टेम्परेचर में चेंजेस आए, डिस्ट्रॉय. सो ये सब डिस्ट्रॉयमेंट की वजह से फार्मर को बहुत ज्यादा हैवी लॉस हो रहा था. नो डाउट अभी भी हो रहा है, बट एज कम्पेयर टू ओल्डन डेज साइंस हैज डेवलप्ड अ लॉट. सो अभी इट्स लेस एज कम्पेयर टू ओल्डन डेज. व्हाई? बिकॉज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. ठीक है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स टू फार्मर सो दैट उनको लॉस कम हो. ओके, इसके लिए बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है. वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. नई नई सीड की वेराइटीज डेवलप होती है, रिसर्च होती है, जेनेटिक लेवल पे नई वेराइटीज बनाते हैं. ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू चेक आउट हियर. सो स्टे ट्यून्ड एंड पे अटेंशन. क्लास आई विल सजेस्ट यू प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स. टेक अ बुक. अगर आपने बनाई है पहले से बुक तो बहुत अच्छी बात है. स्टार्ट राइटिंग नोट्स. ओके, ऐसे टेबुलर फॉर्म में नोट्स बना के आप लर्न करोगे तो बोर्ड्स के लिए एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, so let's start then. Food is the basic requirement of all organism. Of course, no one can survive without food because body requires energy. तो energy कहाँ से आएगी? We are not any equipment. जो चार्जर लगाया चार्ज किया. No. Like equipments को भी, हमारे मोबाइल को भी energy चाहिए in the form of charge, which is provided by electricity. वैसे ही organism requires food to stay alive. Okay? So green plant produce food by the process of photosynthesis. See, break the word photo and synthesis. Photo means light, synthesis means to prepare. So photosynthesis. Okay, so photo light कहाँ से आएगी? Of course sunlight. So day time के अंदर जब तक sunlight है, plant prepares food with the help of process called photosynthesis. Plant is green in color and green part of plant can produce food. क्यों? ये green color क्या है? Called as chlorophyll. This green plant consists of chlorophyll. Chlorophyll absorbs sunlight and convert this light energy, sunlight, into chemical energy, which indirectly produces food. Plant which can produce its own food, उसके लिए एक term है called as autotrophs. क्या बोलते हैं? Autotrophs. And animals or organism like humans who cannot prepare its own food is called as heterotrophs. क्या बोलते हैं? Heterotrophs. Okay, so animals and humans are heterotrophs which are directly or indirectly dependent on plant for food, for surviving. ठीक है, now we are going to see plant breeding techniques. क्या था उसके अंदर, different methods, how it is done, everything. Before that, let's come here. Population is increasing day by day, especially of India, है ना. Second most populated city in China को भी within some years tackle करने वाला है according to survey. So population is increasing day by day, but food production is decreasing day by day. Nowadays इंडिया के पास इतना फूड प्रोडक्शन है कि वो एक्सपोर्ट करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट सम बैक ईयर्स. ओके, 1960s 1980s के टाइम की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो विच लीड्स टू स्टार्वेशन. ओके, पुअर पीपल, पॉवर्टी लाइन इंडिया के अंदर बहुत कम है, लिटरेसी रेट भी कम है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं था. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नो एम्प्लॉयमेंट, जॉब कटिंग, हेंस पर्सन वाज डाइंग, पीपल वाज डाइंग बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, विच लीड to that of millions of people, not only in India, all around the world, पूरे ग्लोब के अंदर. बट इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक बांग्लादेश एंड मेनी अदर, वहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्टिविटी एज कम्पेयर टू USA और सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट लोग ने डिसाइड किया ऑल अराउंड द वर्ल्ड दैट इसके लिए कोई मेजर निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो वो टेक्निक क्या थी? प्लांट ब्रीडिंग. ठीक है, सो प्रोडक्शन कैन बी डेवलप्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग. सो वी नीड टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. और खाली प्रोडक्शन बढ़ा के फायदा है क्या? मीन्स क्वांटिटी बहुत सारा क्या, कंसिडर करें 10x10 के रूम में 7 kg राइस ग्रो हो रहा है. ओके, बाय सम टेक्निक 7 kg का 12 kg हो गया, तो 5 kg इंप्रूवमेंट हुआ, क्वांटिटी बढ़ी, बट क्वालिटी और पुअर हो गई या वैसे ही रही, कोई मीन है नहीं.
मीन है, नो डाउट, बट अगर क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो यू ऑल्सो नीड टू डेवलप द क्वालिटी. Okay, so scientists focused on food production, enhancement in food production by developing quantity as well as quality. Okay, so it focused on quality as well as quantity development. Okay, class, just have a look till here once. Okay, so hope you are writing. Plant breeding. प्लांट ब्रीडिंग में करते क्या है, जो भी क्रॉप्स की वैरायटी करंटली अवेलेबल है उसको और डेवलप करते हैं. हाउ वी विल सी. तो प्लांट ब्रीडिंग इज डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर वैरायटी ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉप. जितने भी एग्जिस्टिंग क्रॉप है अभी जो प्रेजेंट है उसके प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करे बाय क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी बाय डेवलपिंग सुपीरियर वैरायटी. ओके, सो सुपीरियर वैरायटी कैसे डेवलप करेंगे सर? बाय प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. ओके, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है जहाँ पे मेंडल ने पूरा हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स बताया. आई डोंट नो आपको चैप्टर हुआ है कि नहीं, बट डेफिनेटली आप लोग पढ़ोगे वो चैप्टर. हाइब्रिडाइजेशन ऑन पी प्लांट, फादर ऑफ जेनेटिक ग्रिगोर मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे. ओके, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है. यू विल लर्न इन डेप्थ अबाउट इट इन सम अदर चैप्टर, सम अदर टाइम. सो ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करो कि राइस की दो वेराइटी है. एक वेराइटी के अंदर हाई टेम्परेचर या क्लाइमेट के चेंजेस को विस्टैंड करने की कैपेसिटी है. ओके, एंड दूसरे वेराइटी के अंदर अगर ड्रॉट आ गया सो कम पानी या बहुत ही लेस वाटर के अंदर भी वो सर्वाइव करेगा, उसकी डेथ नहीं होगी. तो डोंट यू थिंक अगर ये दो वेराइटी को हमने क्रॉस कर दिया और एक सीड प्रोड्यूस किया तो उसके अंदर क्या होगा? लो वाटर कैपेसिटी, लो वाटर विस्टैंड कैपेसिटी होगी, साथ में क्लाइमेट सुटेबल डिफरेंट क्लाइमेट्स के अंदर भी सर्वाइव करने की कैपेसिटी होगी. ऑफ कोर्स है. सो टू इन वन फॉर्म है ना, दो अलग वैरायटी की जरूरत नहीं, दोनों के कैरेक्टर सिर्फ एक में आए. दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड क्रॉप. ओके, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. ओके, प्लांट ब्रीडिंग इज नथिंग बट इट इज अल्टरिंग, चेंजिंग द जेनेटिक पैटर्न ऑफ प्लांट टू इंक्रीज yield and nutritional value. Okay, once again, plant breeding is altering the genetic pattern of plant to increase yield and nutritional value. Okay, how we will check it out later. आगे और पूरी प्रोसेस आएगी. Plant breeding started back 10,000 to 12,000 years ago. Okay, it started back 10,000 years ago. Now what is the applications of hybridization? They are genetics जो हमने डिस्कस किया. What is gene? First of all, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए. उस डीएनए का एक पार्ट लूं मैं, अ सेगमेंट ऑफ होल लॉन्ग डीएनए का एक पार्ट, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन विच कंट्रोल्स प्रोटीन प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो. ठीक है, हर एक कैरेक्टर, मेरे स्किन का कलर, मेरा टोन बोलने का, देन माय बॉडी कैरेक्टर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन. ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम. तो अभी तो बोला आपने डीएनए पे, बट डीएनए ट्विस्ट होके क्या बनता है? क्रोमोसोम. ओके, ठीक है. तो जेनेटिक, टैक्सोनॉमी, हाउ प्लांट इज क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. अभी आप बोलोगे सर राइस और मैंगो की वैरायटी को ब्रीड करते हैं. नो, दैट इज नॉट लॉजिकल. ठीक है, सो टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट के, प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया है, कौन से कैरेक्टर्स है. ओके, ये दो ब्रीड के कैरेक्टर्स मैच हो रहे तो इसको क्रॉस करके देखते हैं. ओके, नियरेस्ट पॉसिबिलिटी, टैक्सोनॉमी. फिजियोलॉजी, हाउ इट फंक्शंस. ओके, पैथोलॉजी, अगर वो प्लांट या एनिमल के रिलेटेड सेल में कोई लेबोरेटरी टेस्ट करना है, रिलेटेड टू लेबोरेटरी टेस्टिंग, फिजियोलॉजी. एग्रीकल्चर, फार्मिंग फील्ड में होता है. आर डीएनए टेक्नोलॉजी, आर स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट. ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी वेयर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब तो दो डिफरेंट वैरायटी के डीएनए को मिक्स करके एक नया वैरायटी आप बना रहे हो. ओके, इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं. तो दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के और भी डिफरेंट मेथड्स है हाइब्रिडाइजेशन के अलावा. दैट इज सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, अच्छे ये वेराइटीज को सिलेक्ट करके क्रॉस करके हाइब्रिड प्रोड्यूस करना, हाइब्रिडाइजेशन. म्यूटेशनल और म्यूटेशन ब्रीडिंग, क्या होता है यहाँ पे? म्यूटेशन इज हार्मफुल रेडिएशन, एक्सरे या अल्ट्रावायोलेट रे या इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, चेंजिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर लीड्स टू चेंज इन जेनेटिक ऑफ ऑर्गेनिज्म
तो यहाँ पे प्लांट में जेनेटिक चेंजेस करवा रहे बाय म्यूटेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ठीक है, जहाँ पे जेनेटिक उसका जो भी है कोडिंग, जेनेटिक कोडिंग विल गेट अल्टर्ड। पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग, polyploid breeding is more than 3 set of chromosome in a cell is called as polyploid breeding. Chromosome का number is more than 3 set in each cell is polyploid breeding. Molecular plant breeding, of course DNA के अंदर changes करने तो molecular level तक जाना पड़ेगा, naked eye से तो कर नहीं सकते, you need high resolution power वाले माइक्रोस्कोप वगैरह, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, स्टेराइल रूम चाहिए, मैनी इक्विपमेंट्स। मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग। टिश्यू कल्चर, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट ले रहे, सेल, ओके, सिलेक्टेड पार्ट में से यूजुअली ग्रोइंग सेल लेते हैं हम लोग, मेरिस्टेमेटिक सेल, उसको हम लोग क्या करते हैं, वी डेवलप इन अ स्टेराइल चेम्बर जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक नहीं कर सकता, एंड उसको सॉइल के अंदर नहीं डालते, ओके, वी टेक इट इन अ स्पेशल कंटेनर जहाँ पे वी पुट अ लिक्विड मीडियम जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मिनरल सब प्रोवाइडेड होता है ऑलरेडी प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में। इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ दैट सेल, कैलस फॉर्म करता है और फाइनली उसको आप आफ्टर ग्रोइंग रूट एंड शूट आएगा उसके अंदर से, एंड स्टेम एंड रूट ग्रोथ के बाद एज द प्लांट ग्रोथ यू कैन पुट इट इन द बैक इन द सॉइल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। टिश्यू कल्चर टेक्निक, आर्टिफिशियल ग्रोइंग ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल। आरडीएनए टेक्नोलॉजी देखा हमने क्या है, एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन। एससीपी क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, अलगे फंजाई बहुत सारे फॉर्म के अंदर होता है। आई विल गिव एग्जांपल ऑफ अलगे, दैट इज अ स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। यूजुअली एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं वो प्रोटीन इनटेक के लिए दे कंज्यूम दिस स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला, ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्रोटीन, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और भी बहुत सारे कैंडिडा एंड मेनी अदर, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ओके, जस्ट हैव अ लुक, होप योर राइटिंग क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टार्ट राइटिंग, मेक अ नोट्स, बिकॉज लास्ट में एक साथ जम्बल्ड हो जाएगा। दिस इज द टाइम, लॉकडाउन का पीरियड है, सो इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। ओके, लास्ट टॉपिक ये बचा हमारा स्टावेशन। 1960s 1970s का जो टाइम था उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टावेशन हुआ था, तो प्लांट के अंदर डेवलपमेंट कराया था बाय डेवलपिंग ब्रीड्स, हाइब्रिड वेराइटीज कॉल्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, है ना, ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मराइन एनिमल वाटर, वैसे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग। ओके, एक अमेरिकन बॉटनिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ओके, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने ऐसी सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की, अलग अलग वैरायटीज क्रॉप्स के अंदर, वीट के अंदर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि पूछो मत। जितनी भी स्टावेशन की प्रॉब्लम थी इंडिया में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में, मैक्सिको के अंदर, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जितनी भी स्टावेशन की प्रॉब्लम थी, दैट ऑल वाज सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग टेक्निक्स। ही डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड मेनी अदर क्रॉप्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट इंडिया के अंदर कौन था फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? नो डाउट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इंडिया में भी डेवलपमेंट किया, और उसके बाद ये वर्क टेक ओवर किसने किया था? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ओके, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ही इज द फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर पूछा, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ही डेवलप सेमी ड्वार्फ वैरायटी, जिसकी वजह से जितने लोग भी एम्प्टी स्टमक हंगर सो जाते थे, स्टार्वेशन से डेथ होती थी, वो बहुत ही कम हो गई, ऑलमोस्ट टू नो। नाउ इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री, टॉप पोजीशन पे आता है इन एक्सपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हम तो खा रहे हैं, हम स्टोर भी कर रहे हैं, साथ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओके, होप यू आर राइटिंग क्लास, जस्ट हैव अ लुक। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, उसके अंदर स्टेप्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, एवरीथिंग। होप यू आर गेटिंग गाइस। Okay, so pause this video and just write it. I will erase it right now. Okay, students, so let's start then. Hybridization and its techniques. Okay, there are different techniques हमने देखा था, म्यूटेशनल ब्रीडिंग था, मॉलिक्यूलर लेवल ब्रीडिंग था, एनआरडीएनए था, एससीपी, टिश्यू कल्चर, बहुत सारे थे, बट द बेस्ट एंड द कॉमन वन विच इज यूज्ड इज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो दिस इज द बेस्ट मेथड, वी गेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर प्रेजेंट है पहले से वो क्रॉप के अंदर, उसके अंदर और डेवलप्ड वेराइटीज हमें देखने मिलती है। ओके, बाय फॉर्मिंग न्यू जेनेटिक
कॉम्बिनेशन. नो हाइब्रिडेशन कैन बी ऑफ 4 टाइप. इंट्रा वेराइटल मतलब इसमें टाइप्स है. ओके कौन सी वेराइटीज के बीच में हो रहा है. इंट्रा वेराइटल जो नॉर्मल वेराइटीज ग्रो हो रही है उसी के अंदर बीच में हो रहा है. इंटर वेराइटल मतलब सपोज राइस की 2 वेराइटी है, राइस के थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज है क्लास, उसमें से कंसिडर करो कोई भी 2 वेराइटी ले रहा हूँ मैं, दोनों को मैं हाइब्रिड करवा रहा हूँ, क्रॉस करवा रहा हूँ, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको ग्रो कर रहा हूँ मैं. ओके सो कॉल्ड एज इंटर वेराइटल between different varieties. Okay, so intervarietal is between 2 varieties of same species. Okay, same species के बीच में. Interspecific, oh sorry, interspecies. इंटर मतलब बीच में, इंटर स्कूल कंपटीशन 2 स्कूल के बीच में, तो यहाँ पे इंटर स्पीशीज मतलब 2 स्पीशीज के बीच में. तो दिस इज बिटवीन 2 स्पीशीज ऑफ सेम जीनस. सर स्पीशीज जीनस 11th में ऑलरेडी आपका कंसेप्ट हुआ है. देन टू लेट्स टेक अ शॉर्ट लुक ऑन दैट. मैंने बताया था टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन करना है ना. तो दिस इज द टेक्सोनॉमिक रैंक. ओके, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. ओके, दिस 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक रैंक. ये ऑर्डर में ही फॉलो होता है. द हाइएस्ट एंड द बिगेस्ट वन इज किंगडम. हाइएस्ट एंड द बिगेस्ट, बहुत बड़ा किंगडम. कंसिडर करो एक किंग है, उसका किंगडम है अपना. किंगडम के अंदर सब अलग अलग विलेजेस है, उस विलेजेस के अंदर अलग अलग सबके बिजनेसेस है, जिसके अलग अलग पॉपुलेशन के घर्स है, होम्स है ना. उसके अंदर अलग अलग वो लोग फील्डिंग्स कर रहे हैं, मतलब क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग वेराइटीज. सो किंगडम, विलेज, देन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट बिजनेस, क्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप. तो एक बड़े से पार्ट, बड़े किंगडम के अंदर ये पार्ट आते गए, सेम टेक्स प्लेस है. तो इस किंगडम के अंदर ये सब आता है. किंगडम इज द हाईएस्ट. अंडर किंगडम कम्स फाइलम. एनिमल का क्लासिफिकेशन करें तो वी विल यूज फाइलम. अगर प्लांट के बारे में करें तो वी विल यूज द वर्ड डिवीजन. वी विल रिप्लेस फाइलम बाय डिवीजन. फाइलम के अंदर क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर द स्मॉलेस्ट वन इज द स्पीशीज. ठीक है, इसके आगे क्लासिफिकेशन नहीं है. 7 टेक्सोनॉमिक रैंक. सी क्लास के अंदर भी सब क्लास आता है, फाइलम में सब फाइलम आता है, वो मैंने नहीं बताया. मेन जो 7 है टेक्सोनॉमिक रैंक के, आई हैव शोन दैट. ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू हियर. इंटर स्पीशीज मतलब 2 स्पीशीज के बीच में, बिटवीन 2 स्पीशीज ऑफ सेम जीनस. अभी समझ में आया, क्योंकि जीनस के अंदर स्पीशीज आता है, तो 2 अलग स्पीशीज बट जीनस उसका सेम रहेगा. ठीक है, बिटवीन 2 स्पीशीज ऑफ सेम जीनस. इंटरजेनेरिक बिटवीन 2 जीनस ऑफ सेम फैमिली बोल सकता हूं मैं. यस, बिटवीन 2 जेनेरा, ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेरा ऑफ सेम फैमिली. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये इंटर क्रॉसिंग इतने हो सकते हैं. ओके, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया ह्यूमन बींग्स का. ह्यूमन बींग का किंगडम क्या है? एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया. 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. वाइटेकर ने दिया था 1969 के अंदर. रिचर्ड H. वाइटेकर. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, उसमें से ये है किंगडम एनिमेलिया. एनिमेलिया के जिसको कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम, कॉर्डेटा. उसके अंदर कौन है? मैमल्स. मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे गिव बर्थ, फीमेल गिव बर्थ टू अ बेबी दैट इज कॉल्ड एज विविपेरस एंड पोजेस मेमोरी ग्लैंड. प्राइमेट्स, उसके अंदर होमिनिड है, होमो एंड देन स्पीशीज होमो सेपियन और सेपियन. ठीक है, सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ठीक है, हैव अ लुक ऑन टैक्सोनॉमिक रैंक क्लास. स्टार्ट राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इंटर स्पीशीज का एग्जांपल दो सर. इंटर स्पीशीज का एग्जांपल है क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी. सुना होगा आपने, हॉर्स एंड डोंकी के बीच में क्रॉस होता है. मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स. फीमेल हॉर्स कॉल्ड एज मेड, मेल डोंकी कॉल्ड एज जैकेस. दोनों के बीच में क्रॉस आएगा, प्रोड्यूस होगा म्यूल. दिस म्यूल कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी बिकॉज ये स्टेराइल होता है. कैसा होता है? स्टेराइल. ठीक है, यूजुअली फील्ड में काम करने के लिए काम आता है या हैवी लोड्स उठाने के लिए काम आता है. ठीक है, इंटरजेनेरा between 2 genera of same family. See, interspecies and intergeneric is very seldom. Seldom मतलब बहुत rare. It occurs very rare. ये दो यूजुअली होते रहते हैं, बट ये दो स्पीशीज के बीच में बहुत रेयर. ठीक है, ओके. टैक्सोनॉमिक रैंक देख लिया. नाउ
प्लांट ब्रीडिंग में मेन स्टेप कौन से? देयर इज 5 मेन स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग. व्हाट आर दैट मेन टॉपिक्स आई हैव गिवन हियर. इसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे डेप्थ के अंदर. नंबर 1 इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. अलग अलग वेराइटीज के कलेक्शन करेंगे हम लोग, उसको देखेंगे, सिलेक्शन करेंगे हम लोग. इवेल्युएट, वी स्टडी इन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. कैरेक्टर अच्छे लगे तो साइंटिस्ट विल, बॉटनिस्ट विल पिक दैट पेरेंट फॉर क्रॉसिंग. थर्ड इज फाइनल हाइब्रिडाइजेशन. दो वैरायटी को क्रॉस करके एक हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा. उस हाइब्रिड सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट, मतलब जो स्पेसिफिक सिलेक्टिव रिकॉम्बिनेंट है उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी, सिलेक्शन होगा, उसके ऊपर टेस्टिंग्स होगी. फाइनली आफ्टर ऑल दिस फील्ड के अंदर वो लोग उसको ग्रो करेंगे. टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्चर. फाइनल बाद में बॉटनिस्ट, साइंटिस्ट जितनी भी टीम है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. ओके ये वैरायटी अभी अच्छा है, मार्केट में रिलीज करने जैसा है. सब टेस्ट हो गए, क्लाइमेट के टेस्ट हो गए, टेम्परेचर का टेस्ट हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट है कि नहीं, सब टेस्ट कर लिए. If they are satisfied, then finally after all these 5 steps, they release it in a market. कैसे? जो भी जिसके बॉटेनिकल गार्डन्स है या फार्मर्स है उनको ये सीड गवर्नमेंट सेल करती है एट लो प्राइस. तो फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलता है बाय ग्रोइंग गुड वैरायटी. दे अर्न मनी एंड उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस 5 पॉइंट्स इन डिटेल. Okay, pause this video and please start writing. बहुत important है ये class. Okay class, let's get started then. As we have seen the main steps in plant breeding, these are the 5 steps. इस 5 स्टेप को elaborate करते हैं. Number 1, collection of variability. Different varieties, desired characters has been selected in a specific plant. Species having desired traits. What is traits now? हर एक कैरेक्टर के पास होते हैं 2 traits. मेंडल ने सिलेक्ट किया था पी प्लांट जिसके अंदर थे 2 ट्राइड्स. सिंगल कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 2 ट्राइड्स. लाइक पी प्लांट उसने सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. पी प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्राइड्स, सॉरी अ कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 2 ट्राइड्स. जैसे कि हाइट, हाइट इज अ कैरेक्टर. हाइट पी प्लांट के अंदर आइदर इट विल बी टॉल और शॉर्ट, दैट इज कॉल्ड एज ड्वार्फ. ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं था, कॉल्ड एज ट्राइड्स. सिलेक्टेड एंड रिजर्व. germplasm collection. What is germplasm collection? It is related to genetic, the living genetic of the plant or animal. Yes, doing plant breeding, so I will use the word plant. Is preserved for plant breeding. ठीक है, preservation of gene. Germplasm collection and diverse allele. A single gene consists of 2 allele. Okay. Now homozygous and heterozygous is the word which is there used in Mendel experiment. If you have completed that chapter then आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बट नहीं है सो आपको आगे आएगा. A single gene consists of 2 allele. Gene is always present in pair. Okay. Now germplasm collection can be done by in situ and ex situ conservation. Let's check out what is in situ conservation. In situ conservation जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह क्रॉसिंग ब्रीडिंग करना है, इट इज डन इन नेचुरल हैबिटेट. मतलब फॉरेस्ट है तो वहां से उठा के कोई आर्टिफिशियल जगह पे, ओपन लैंड जहाँ पे हम हमारा फार्म है वहां पे करेंगे नहीं. इन सिटू नेचुरली जहाँ पे हुआ है वो वहीं पे दे परफॉर्म देयर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो भी है. दैट इज इन नेचुरल हैबिटेट. एग्जांपल फॉरेस्ट. एक्स सिटू ऑपोजिट. ओके, आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट जैसे कि बॉटेनिकल गार्डन जो ह्यूमन ने क्रिएट किए. बॉटेनिकल गार्डन, सीड बैंक जहाँ पे सीड्स मिलते हैं, स्टोर्स होते हैं. नर्सरीज जहाँ पे प्लांट दैट इज डिफरेंट फ्लावर्स ग्रोज करते हैं हम लोग. ठीक है, इन सिटू एंड एक्स सिटू. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. ओके, चेक करो, इवैल्यूएट करो एंड पेरेंट को सिलेक्ट करो. germplasm is evaluated and screened, detected for desired character. एक बॉटनिस्ट को, साइंटिस्ट को जो कैरेक्टर्स चाहिए वो कैरेक्टर्स है कि नहीं है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, कैसे करेंगे? सेल्फिंग करवाएंगे. मतलब कंसिडर करो कि 2 प्लांट है जिसके अंदर कैरेक्टर्स है, दोनों को ब्रीड किया एंड हाइब्रिड प्रोड्यूस किया. उस हाइब्रिड के जो भी बेबीज आए कॉल्ड एज हाइब्रिड, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, उस जनरेशन को वापस क्रॉस करा. वैसे कितनी बार करा? सेल्फिंग किया. सेल्फिंग इज डन फॉर 3 to 4 जनरेशन. तो सर रीजन क्या है इसका? कंटिन्यूसली उसी चीज को 3 to 4 जनरेशन तक क्रॉस करोगे तो उसमें जो भी अनवांटेड कैरेक्टर्स है दैट विल बी एलिमिनेटेड, एंड जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए, बॉटनिस्ट साइंटिस्ट को चाहिए, दैट विल बी फॉर्म. तो इट मेक्स प्लांट प्योर होमोजाइगस. ठीक है, होमोजाइगस में जो कैरेक्टर चाहिए वो जेनेटिक फॉर्म में एलील सेम रहेगी उसके. ओके, फॉर एग्जांपल टॉल के लिए रहेगा बिग टी, बिग टी, बिग टी स्मॉल टी नहीं आएगा. होमोजाइगस का मतलब वही होता है सेम एलील.
in a gene of desired character. Desired now number 3 hybridization. Now hybridization कैसे करते हैं? ओके मेल एंड फीमेल को क्रॉस करवाते हैं वो तो हमें पता ही है, बट जो डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर साइंटिस्ट बॉटनिस्ट को चाहिए, हमें चाहिए, दैट इज टेकन एज अ फीमेल पार्ट. ओके मीन्स फीमेल के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर वाला लेंगे हम लोग, कॉल्ड एज रिकरेंट. एंड जो कैरेक्टर्स गंदे हैं, बैड कैरेक्टर, डॉफ कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, वो किसके अंदर आएगा? मेल, विच इज द डोनर. ओके तो यही रूल है हाइब्रिडाइजेशन का. फीमेल इज ऑलवेज टेकन एज अ गुड कैरेक्टर्ड वन एंड मेल एज अ बैड कैरेक्टर्ड वन. ओके तो इसको दोनों को क्रॉस करवाएंगे हम लोग. आफ्टर क्रॉसिंग इट विल प्रोड्यूस अ हाइब्रिड जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स रहेंगे. सी नाउ मेल के पास क्या है? पोलन ग्रेन. मेल गैमेट कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन. अगर आप हिबिस्कस शू फ्लावर देखोगे तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट एक में ही रहते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं ना. सेंटर वाला होता है स्टिग्मा, उसके आजू बाजू ग्रो होते हैं स्टेमेन फिलामेंट के ऊपर, देन उसके ऊपर होता है एंथर. एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन. अगर नहीं पता तो प्लीज गो चेक आउट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पार्ट ऑफ फ्लावर. मेल कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन. इस पोलन ग्रेन को आफ्टर मैच्योरेशन इट इज कलेक्टेड बाय सम टेक्निक, डस्टिंग करके. इस पोलन ग्रेन को वापस डस्ट करते हैं. डस्ट किसके ऊपर? ऑफकोर्स फीमेल पार्ट पे. फीमेल के ऊपर होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. टिप पे होता है स्टिग्मा, सेंटर में सिलेंड्रिकल स्टाइल एंड नीचे होता है ऐसे शेप का, ओवल शेप का ओवरी. ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल रहता है. पोलन ग्रेन इज डस्टेड ऑन इमेस्कुलेटेड फ्लावर. नाउ सर ये इमेस्कुलेटेड का मतलब क्या है? इमेस्कुलेशन इज अ प्रोसेस वेयर मेल स्टेमेन जिसके ऊपर एंथर ग्रो होता है एंड जिसमें पोलन ग्रेन होता है, वो स्टेमेन को मैच्योर, एंथर के मैच्योर होने के पहले वो स्टेमेन को निकाल लेते हैं. तो सर क्यों? बिकॉज अगर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन मैच्योर्ड हो गए तो डोंट यू थिंक वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा बाय प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना. विंड के थ्रू कैसे भी आ सकता है, इंसेक्ट के थ्रू, वो तो पॉलिनेशन हो जाएगा. और हम यहाँ पे आर्टिफिशियल करवा रहे हैं, तो नेचुरल पॉलिनेशन प्रिवेंट करना है, वो नहीं होने देना है. हेंस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन. स्टेमेन ऑफ द फ्लावर इज रिमूव्ड बिफोर एंथर गेट्स मैच्योर्ड. इन स्टिग्मा के ऊपर एक बैग लगा देते हैं प्लास्टिक का. क्यों सर? ताकि भले वो फ्लावर का हमने पोलन ग्रेन निकाल दिया, एंथर निकाल दिया, बट एटमॉस्फेयर में विंड है, विंड के थ्रू भी तो आ सकता है पोलन ग्रेन. कोई इंसेक्ट आके बैठा उसके ऊपर, हनी भी, उसके अगर लेग्स के ऊपर पोलन ग्रेन स्टिक है तो उससे पॉलिनेशन हो सकता है. वी हैव टू प्रिवेंट इट. 100% सेफ्टी. ठीक है. स्टेमेन इज रिमूव्ड before anther gets matured and stigma is dead. After this emasculated flower के ऊपर pollen grain डालने की वजह से क्या होगा? It will lead to formation of further generation, next generation babies आएंगे. Okay, that is called as F1 hybrid. See, plant में babies नहीं बोलते, but for better understanding I am using that word. ठीक है, तो called as leads to formation of F1 hybrid. क्या बोलते हैं? F1. F मतलब फिलाइल जनरेशन, दैट इज बेबी वाला जनरेशन. पेरेंट ने क्रॉस किया तो जो आउटकम आया कॉल्ड एज फिलाइल जनरेशन. फिर उस बेबी के अंदर F1 जनरेशन के अंदर देखते कि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर भी चाहिए, वो है कि नहीं है. ठीक है. फाइनली दिस वाज आवर थर्ड स्टेप, हाइब्रिडाइजेशन. नाउ आवर फोर्थ स्टेप, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट स्टार्ट्स. सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट. पहले सिलेक्ट करेंगे फिर टेस्ट करेंगे. देखते हैं F1 हाइब्रिड, जो भी F1 हाइब्रिड है उसको डायरेक्ट आगे प्रोसेस नहीं करेगी, उसको भी 3 से 4 बार, 3 to 4 जनरेशन इट इज सेल्फ. ओके, F1 hybrid is self for 3 to 4 generation. For few generation it is cross, and finally after 3 to 4 generation, after some generation, uniformity is obtained. मतलब नए कैरेक्टर उसमें दिखेंगे नहीं, एक ही कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली हर जनरेशन में देखने मिलेगी, कॉल्ड एज यूनिफॉर्मिटी. This was our fourth step. Now, the last step and very important step is testing, releasing and commercialization of new culture. पहले उसको टेस्ट करेंगे, है ना. एक एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड के ऊपर जाके उसको शो करेंगे, देखिए कैसा ब्रीड है. डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर उसको टेस्ट करेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट है कि नहीं, वाटर के अंदर ड्रॉट रेजिस्टेंट है कि नहीं, फ्लड आ रहा है तो सर्वाइव कर पा रहा है. डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उसको कुछ साल तक टेस्ट करेगा. ऐसे नहीं कि आज की और कर रिलीज हो गया, नहीं. इट टेक्स इयर्स, इट टेक्स टाइम. ठीक है. न्यूली फॉर्म स्पीशीज इज इवेल्युएटेड फॉर डिजीज रेजिस्टेंट. चेक करते कि इसको कोई डिजीज तो है नहीं ना, और अगर है तो वो रेजिस्टेंट है कि नहीं, उसके अगेंस्ट कोई डिजीज अफेक्ट कर रही है तो उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट है कि नहीं है. देन पेस्ट. ओके,
लॉकस्ट एंड बहुत सारे अलग अलग पेस्ट आते हैं, उस पेस्ट को इन्फेक्ट करेंगे पर्पसली उस प्लांट के ऊपर एंड देखेंगे कि उसके रेजिस्टेंट में कैसे काम करता है, पेस्ट रेजिस्टेंट है कि नहीं, उसकी क्वालिटी तो कम नहीं हो रही है। ओके, और ये एक बार नहीं करते, दिस टेस्ट इज परफॉर्म एंड ग्रोन एंड डन फॉर 3 to 4 जनरेशन। ओके, सपोज एक बार हुआ और सेकेंड टाइम नहीं हुआ, रिलीज कर दिया, तो मार्केट में पैसा तो जाएगा ही, साथ में इंडियन गवर्नमेंट का नाम भी खराब होगा कि भाई गलत रॉन्ग क्वालिटी की सीड्स प्रोवाइड की। तो मेकिंग 100% श्योर फॉर ग्रोइंग फॉर 3 to 4 जनरेशन इन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब एग्रीकल्चर को सूटेबल होने वाला क्लाइमेट एंड उसके थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर भी जाते हैं। ओके, टेम्परेचर बढ़ के, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो हो रहा है कि नहीं, टेम्परेचर कम है एटमॉस्फेयर का तो हो रहा है कि नहीं, विंटर सीजन में हो रहा है कि नहीं, all the test is performed and then afterward finally variety is released in the market, it is sold in the market given to farmer। okay, as I told green revolution आया था 1960s के टाइम पे, बहुत ही there was no food, people were starving, millions of people died all over the world including many peoples from India too। तो 1961 के अंदर ही varieties रिलीज की थी बहुत सारी डेवलप्ड of rice, wheat, sorghum, sugarcane, and n numbers of variety। Okay, class. So this was the whole process. Just have a look and please, class, write it down. बहुत important है ये. Now we are going to see pest resistance varieties of some crops. Okay. Hope you are getting it. Please revise it properly. अभी आगे जो पार्ट आ रहा है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग नेम्स लर्न करने वाले हम लोग, तो बहुत वॉलेटाइल है, सो प्लीज ऑल्सो डू रिटन प्रैक्टिस। ओके, hope you got it now, let me erase it and we are going to study the new varieties of disease resistant crop। okay class, well decided we are going to say Indian hybrid varieties। okay, तो जितनी भी हाइब्रिड वेराइटीज है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, देन इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, ऑल द वेराइटीज वी आर गोइंग टू सी व्हिच आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड। ठीक है, इंडियन हाइब्रिड वेराइटीज, फर्स्ट wheat and rice varieties। okay, during 1960s because of green revolution, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की वजह से प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था wheat and rice का, बिकॉज दे इंट्रोड्यूस सेमी ड्वार्फ वेराइटीज। यस, नॉर्मन ई बोरलॉग इंट्रोड्यूस सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ wheat। ओके, उनका नाम था सोनालिका एंड कल्याण सोना। क्या नाम था? सोनालिका एंड कल्याण सोना। देखो इंडियन नाम से, सो यू कैन रिकॉग्नाइज इट इज प्रिपेयर्ड इन इंडिया। ठीक है, देन another variety of rice was developed by combining two varieties, one from IR8, that is International Rice Research Institute, and another one was taken from Taichung Native One, that is from Taiwan। ओके, दोनों की वेराइटीज को मिक्स करके एक राइस का वेराइटीज प्रोड्यूस किया था। अदर नेम्स आर वीट का जया, पद्मा एंड रत्ना। ठीक है, नेक्स्ट इज शुगर केन के अंदर डेवलपमेंट। यहाँ पे 2 स्पीशीज है शुगर केन की, वन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड अदर फ्रॉम साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला साइड। ओके, सो नॉर्थ इंडियन वेराइटी सेकेरम बारबेरी एंड साउथ इंडियन वेराइटी सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम। ओके ओके, ये दोनों शुगर केन की वेराइटी, एक है नॉर्थ इंडियन वेराइटी, दूसरी साउथ इंडियन वेराइटी। बट सेकेरम ऑफिसिनेरम का जो स्टेम था दैट वाज थिक एंड शुगर कंटेंट वाज हाई, शुगर कंटेंट वाज हाई। नाउ ये साउथ इंडियन वेराइटी को जब भी नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो किया, ऑफ कोर्स साउथ से जैसे ही नॉर्थ जाओगे इंडिया में बहुत ही ड्रेस्टिक क्लाइमेटिक चेंज देखने मिलेगा आपको। यस, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज होने की वजह से दिस सेकेरम ऑफिसिनेरम कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन नॉर्थ इंडिया। से तो प्रॉब्लम हो गया एंड वी हैड टू फाइट दिस सिचुएशन। नॉर्थ इंडिया के अंदर साउथ की स्पीशीज ग्रो होनी ही चाहिए। सो व्हाट आवर साइंटिस्ट डिड, दे क्रॉस ब्रीडेड सेकेरम बारबेरी एंड सेकेरम ऑफिसिनेरम, दोनों को ब्रीड किया, हाइब्रिड प्रोड्यूस किया एंड बाद में वो हाइब्रिड को दे मेड टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। तो पहले सेकेरम ऑफिसिनेरम को नॉर्थ में ग्रो किया, डिड नॉट ग्रो वेल, बट आफ्टर दैट दे क्रॉस, क्या किया, दोनों को क्रॉस किया एंड फाइनली उसको ग्रो करवाया नॉर्थ इंडिया में, इट ग्रोन वेरी वेल। ठीक है, हाइब्रिड स्पीशीज। ठीक है, द नेक्स्ट इज मिलेट्स। ओके ओके क्लास, लाइक एवरी टाइम आई विल सजेस्ट यू प्लीज स्टार्ट राइटिंग, प्लीज कॉपी डाउन दिस। ओके क्लास, द नेक्स्ट इज मिलेट्स।
ओके मिलेट्स के अंदर हाइब्रिड वेराइटीज देखेंगे, मेज जवार बाजरा 3 वेराइटी है. ओके द नेम इज मेज का इज गंगा 3, जवार को 3 CO, this CO stand for Coimbatore, and bajra is Nifad. These all three are the name of places. Yes. ओके रिलेशन में वो वहां पे डेवलप हुई है, वैसी वेराइटी है, इसके लिए उसको वो नाम दिया गया. सो दिस ऑल थ्री आर हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मिलेट्स विच इज रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस. ओके वाटर के स्ट्रेस को रेजिस्टेंट है. ओके सो दिस इज द मिलेट्स. द नेक्स्ट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट. पैथोजेन से 3, उसके अगेंस्ट कौन से डिजीज को कैसे रेजिस्टेंस है, कौन से डिजीज कॉज करते हो नाम दिए हुए. लेट्स चेक आउट. फर्स्ट इज फंजाई, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट किसमें, शुगर केन, एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. सी ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, इफ यू विल सी व्हीट के ऊपर पूरे लाइक पैचेस जैसा फॉर्मेशन होता है. रेड रॉट ऑफ शुगर केन, उसके ऊपर भी पूरे पैचेस पैचेस होते हैं. एज यू सी यू विल नॉट एबल टू ईट इट, लगेगा कि हाँ इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये खराब हो गया, समथिंग लाइक दैट. ओके रेड रॉट ऑफ शुगर केन. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लीव्स पूरे उसके गंदे हो जाते हैं, देख के ही पता चलता है कि भाई ये गंदा हो गया. ओके इट इज इन्फेक्टेड बाय फंजाई. बैक्टीरिया डिजीज का नाम है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर. क्या है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर. ठीक है लाइक स्पोर्स जैसा फॉर्मेशन हो जाता है पूरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से. वायरस टबैको मोसैक वायरस, ऑल्सो कॉल्ड एज TMV. TMV कैपिटल. ओके तो TMV स्टैंड फॉर टबैको मोसैक वायरस. ठीक है. द नेक्स्ट इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग. ओके म्यूटेशन मैंने देखा था, जीन जेनेटिक जो है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा उसका जेनेटिक कोड. क्यों, बिकॉज ऑफ सम हाई टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे मैंने. तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. सडन चेंज ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. नाउ म्यूटेशन दो टाइप पे ला सकते हैं, एक नेचुरल म्यूटेशन एंड सेकेंड आर्टिफिशियल जो हम पर्पसली करवा रहे हैं. ठीक है तो नेचुरल म्यूटेशन बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, मैंने बताया था एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया एटमोस्फेयर में तो भी होता है ये, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट ऑल्सो टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एक्सरेज एंड अल्ट्रावायोलेट रेज. सर इससे कैसे होगा, एक पेनिट्रेस इन DNA बॉन्ड्स को ब्रेक करता है. बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स केमिकल अल्टरनेशन हो जाएगा उसके अंदर, डेट इज उसका जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा. तो प्रोटीन फॉर्मेशन, एंजाइम फॉर्मेशन सब चेंज हो जाएगा. सेकेंड इज केमिकल म्यूटेशन. केमिकल म्यूटेशन बिकॉज ऑफ केमिकल वी कैन ब्रिंग म्यूटेशन. नाइट्रस एसिड से हो सकता है, EMS से हो सकता है, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, एंड मस्टर्ड गैस ऑल्सो कॉजेस म्यूटेशन. एंड फाइनली लास्ट इज कॉल्चिसाइन. कॉल्चिसाइन क्या है, कॉल्चिसाइन कॉजेस म्यूटेशन बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को वो ब्लॉक कर देगा. ठीक है ठीक है. सो दिस आर द केमिकल म्यूटेशन. नाउ म्यूटेशन ब्रीडिंग के कुछ ब्रीड दिए किससे रेजिस्टेंट है, इसी म्यूटेशन ब्रीडिंग के जो क्रिएट किए गए. लेट्स चेक आउट द 4 वेराइटीज. फर्स्ट इज जगन्नाथ. ओके इंडियन वेराइटी है जगन्नाथ which is a variety of rice. Second is NP836 of wheat. It is rust resistant. किसके रेजिस्टेंट में है, रस्ट के रेजिस्टेंट में. ओके इंडोर 2 of cotton resistant to bollworm. ठीक है ये इंसेक्ट पेस्ट है, बॉलवर्म है ये, विच ईट्स कॉटन है, पूरा खराब कर देता है. इसको आगे हम डेप्थ में देखने वाले हैं. बैसिलस thuringiensis भी एक वेराइटी है कॉटन की जो डेवलप हुई है इसके अगेंस्ट बॉलवर्म के. एंड द लास्ट इज रेजिना 2 विच इज अगेंस्ट कैबेज, बैक्टीरियल रॉट होने से वो प्रिवेंट करता है. So this is the mutation breeding के 4 names of 4 different vegetables: rice, wheat, cotton and cabbage. So cotton is not a vegetable. ठीक है. Now crops, varieties and किसके resistant के अंदर वो preparation की गई है, means it can prevent what? Let's check out. Number 1 is wheat. The name of that variety is Himgiri. It is resistant to leaf and strip rust and hill blight. Brassica वेराइटी का नाम है फूसा स्वार्निम, रेजिस्टेंट टू डिजीज नेम व्हाइट रस्ट. कॉलीफ्लावर नेम पूसा सुब्रा, रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट कॉल ब्लाइट ब्लैक रॉट. फाइनली लास्ट इज चिली पूसा सदाबहार, रेजिस्टेंट टू चिली मोसैक वायरस एंड TMV टबैको मोसैक वायरस. एंड द लास्ट इज लीफ कर्ल. Okay class, you need to learn this name.
बोर्ड्स में बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स एंड 3 मार्क क्वेश्चन 2-3 मार्क क्वेश्चन के अंदर भी ये पूछे गए हुए हैं, तो प्लीज लर्न इट। कोई मेमोनिक्स है आपके पास या कोई मेथड है लर्न करने की, सो लर्न बाय दैट वे, हैव अ लुक एंड आप अच्छे से इसको लिख लो A4 साइज पेपर पे या आपने बुक बनाई है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके क्लास, so these are the resistant to insect pest. Okay, let's check it out. Name of crops, varieties, name given by government and insect pest. किसके रेजिस्टेंस में है उस इंसेक्ट का नाम दिया है। ब्रासिका variety Pusa Goro, it is resistant to aphids. Flat beans Pusa Sam 3 and Pusa Sam 2 resistant to jacid, aphid and fruit borers. Next is okra. Okra, okay, the bindi lady finger which you eat is called as okra. Variety Pusa Swarni, Pusa A4, insect pest, shoot and fruit borers. Okay, राइट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्टार्ट लर्निंग इट बाय योरसेल्फ। कोई मेमोनिक्स है आपके पास ट्रिक्स है याद करने की, सो डू इट बाय दैट वे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी टिश्यू कल्चर टेक्निक। लेट्स चेक इट आउट देन। व्हाट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? ग्रोइंग प्लांट्स बाय आर्टिफिशियल मीन इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। सॉइल के अंदर ग्रो नहीं कर रहे। लेट्स चेक इट आउट। हु डिस्कवर्ड, किसने किया? एवरीथिंग। बिफोर दैट यू नीड टू नो सम टर्म्स। इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, दैट इज नॉर्मली प्लांट ग्रोज इन सॉइल, है ना, सीड में से शूट एंड रूट निकलता है, दैट इज लीड टू स्टेम एंड रूट फॉर्मेशन। बट हियर इट इज डन इन कल्चर डिश और इन टेस्ट ट्यूब। ओके, कल्चर डिश एक डिश में करता है, कॉल्ड एज कल्चर डिश, इज कॉल्ड एज इन विट्रो टेक्निक। यहाँ पे सॉइल यूज नहीं कर रहे अभी हम लोग। ओके, सो बिना सॉइल के हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। लेट्स चेक इट आउट। टोटिपोटेंसी, एबिलिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि अगर उसको बराबर कंडीशन, न्यूट्रिएंट्स एंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, so that whole plant, this small part of plant can convert into whole new plant. yes, एक छोटा सा प्लांट का पार्ट पूरा एक नया प्लांट बन सकता है। aseptic condition called as sterile condition. ठीक है, so let's start. This technique was discovered by Haberland in the year 1902. We are isolating a cell or tissue or organ in vitro, that is in a culture dish. ठीक है, the part of plant which we are using to grow whole new plant is called as explant. क्या बोलते हैं? explant, which further forms callus. देखते हैं क्या वो। ओके, प्रिंसिपल क्या है इसका? टोटिपोटेंसी। देखा था हमने यहाँ पे क्या था? टोटिपोटेंसी। नाउ ग्रोथ इज डन इन विट्रो बाय टू फॉर्म, दो मेथड है उसके अंदर। एक सॉलिड मीडियम हो सकता है जिसके अंदर ग्रोथ कर रहा है, खाली ऐसे डिश लिया, उसको स्टेराइल किया, प्लांट का एक पार्ट रखा तो ग्रो नहीं होगा। इट रिक्वायर्स अ मीडियम, सॉइल में से जितना एब्जॉर्प्शन करता है वो मिनरल्स एंड ऑल, वो हमें आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे टू मीडियम, सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम। सॉलिड मीडियम को बोलते हैं कैलस कल्चर, लिक्विड को बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। ओके, कल्चर कंटेन ऑल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड अगार। अगार इज अ टाइप ऑफ रेड अलगे। ओके, ये अगार सिर्फ कैलस कल्चर में ही होता है, सस्पेंशन में नहीं होता। कॉमन मीडियम जो यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज MS मीडियम, कॉल्ड एज म्यूरासिस एंड स्कूक। ठीक है, देन स्टेराइल कंडीशन करने के लिए ग्लास वेयर जो यूज किया है, ऐसा बोरोसिलिकेट ग्लास, जो भी कल्चर मीडियम, एवरीथिंग जो भी यूज किया है, इट शुड बी टोटली स्टेराइल। उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, वरना ये टिश्यू कल्चर का आपका पूरा टेक्निक जितना भी मेथड है सब वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका ये जो एक्सप्लांट है इट विल गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, तो डिटर्जेंट से क्लीन करो या हॉट एयर ओवन में रखो। न्यूट्रन मीडियम जो है उसको ऑटोक्लेव करो, प्रेशराइज करो 15 LB पर स्क्वायर फॉर 20 मिनट। ठीक है, एक्सप्लांट जो है उसको स्टेराइल करने के लिए आइदर डिप इट इन 20% इथाइल अल्कोहल और 0.1% HgCl2। ठीक है, दैट इज मर्क्यूरी क्लोराइड। इनोकुलेशन चेंबर जिसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, बिफोर 1 आवर, 1 घंटा उसके अंदर रखने से पहले यू हैव टू पुट यूवी रेस ट्यूब इन इट। यूवी रेस ट्यूब से क्या होगा? यूवी रेस उसके ऊपर जैसे ही गिरेगी, जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे
that all will get killed. Okay, तो sterile condition create हो जाएगी. टेम्परेचर जो है इस कल्चर के लिए, इस प्रोसेस के लिए मेंटेन 18 to 20 डिग्री सेल्सियस. एंड पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन 0 to 14 का स्केल होता है, इसका पीएच होना चाहिए बिटवीन 5 to 5.8. तब जाके आपका ये पूरा एक छोटे प्लांट के पार्ट से नया प्लांट विल ग्रो. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. देन एक्सप्लांट को जैसे ही कल्चर में रखा, सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, everything is going proper, it will take 2 to 3 weeks for explant to convert itself into callus. ठीक है, okay, explant will grow to form a callus, an unorganized mass of cell formed called as callus. Callus leads to organ formation. कौन सा organ formation? Shoot will form stem called as caulogenesis. Root called as rhizogenesis. Genesis means formation. Okay, rhizo is the root. नो एगिटेशन इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे कैलस कल्चर में कांस्टेंट शेकिंग, एगिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. बट इन सस्पेंशन कल्चर, लिक्विड कल्चर, कांस्टेंट एगिटेशन इज रिक्वायर्ड. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन. माइक्रो इज द स्मॉल, प्रोपोगेशन क्लोनल प्रोपोगेशन, एग्जैक्टली सेम प्लांट बनना इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन, कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गन फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस किससे होता है, किसका ग्रोथ हुआ? शूट एंड रूट का. तो थ्रू शूट it leads to formation of stem. Okay, this shoot leads to regeneration of whole plant, and this technique is adopted by many Indian biotechnologists to grow many plants, ornamental plants, that is marriages वगैरह में यूज होते हैं, और भी बहुत सारे शो पीस के लिए यूज होते हैं, बुकेस में यूज होते हैं. ओके, ऑर्चिड, यूकेलिप्टस, क्रिसेंथेमम एंड एडिबल fruit like banana, grapes, citrus. Okay class, so hope you are making notes, बहुत important है. Now what are the advantages of micropropagation? The advantages of micropropagation is rapid multiplication of plant. Plant बहुत फटाफट multiply होगा as compared to normal condition में. एक same plant grow करो, एक tissue culture के through, एक normal soil के through. The plant which grows faster is by tissue culture technique. Large plantlets, सर plantlets क्या है? ये मेथड से जो प्लांट ग्रो हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल प्लांट, बेबी प्लांट बोल सकते हो, लिखने का नहीं, बेबी प्लांट, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम सेइंग दिस बेबी प्लांट इज कॉल्ड एज प्लांटलेट्स. ओके, तो लार्ज प्लांटलेट्स, बहुत सारे प्लांटलेट्स वी कैन ग्रो इन लेस नंबर ऑफ टाइम. क्लोन्स कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड. क्लोन्स एग्जैक्टली सिमिलर, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसका एग्जैक्ट पेरेंट जैसा होगा, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होगा. जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक्स, जीनोटाइप can be repeated for several generations. Okay, plant can be grown throughout the year, like mango grows only in summer. तो इसमें ऐसा नहीं होगा. Okay, इतना बड़ा प्लांट ग्रो करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत स्पेस वगैरह ऑक्यूपाई करेगा. तो स्मॉल प्लांट की बात करें, कोई एक प्लांट है जो सिर्फ समर में ग्रो हो रहा है, तो विंटर एंड स्प्रिंग के अंदर यू कैन नॉट गेट दैट, बट थ्रू दिस टेक्निक कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सीजन हो, यू कैन ग्रो एनी प्लांट एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर, सीजन इंडिपेंडेंट. रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स है जो एक्सटिंग होने आए एकदम, उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू ग्रो करके प्रिजर्व किया जा सकता है. वी कैन ऑब्टेन साइब्रिड. साइब्रिड इज न्यूक्लियस एक रहेगा, बट उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म रहेगा वो दोनों पेरेंट्स का रहेगा. सिंगल न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है, प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, ऑब्टेन हाइब्रिड व्हेन न्यू वेराइटीज कैन बी ऑब्टेन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ओके क्लास, सो दिस इज द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर. बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ये 5 to 7 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एंड स्टार्ट राइटिंग. प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स प्रॉपरली in A4 size paper or in your notebook, whatever is suitable to you. Okay students, so the next part which we are going to hear is single cell protein. SCP क्या होता है, we have already learned. डेप्थ में पढ़ेंगे अभी क्या है SCP, single cell protein. By the 2020 it has made an estimation that पूरे वर्ल्ड की प्रोटीन नीड कंप्लीट करने के लिए 1250 million tons of meat and dairy products will be required. The more important of protein was realized by the world during World War I. Okay, when the fighters and peoples, majority of them suffered from protein deficiency. Okay, SCP consists of protein and it can be produced. Protein can be produced by pure microbial culture or from dead and dried cell biomass. Okay, plant and animal product through which
biomass can be obtained. Okay, energy can be produced. That is the biomass. Algae, fungi, bacteria, yeast. These all four consist of very high amount of protein, and this can be grown. Okay, using inexpensive substrate. SCP can be produced from these blue color highlight words. What are they? Let's check out. Wood shaving, sawdust, corn cobs, paraffin, and alkanes, sugarcane molasses, human and animal waste. ये सब के थ्रू you can produce SCP at very low cost. So दो benefit हो गए. प्रोटीन का कंटेंट मिलेगा हमें which can be consumed, and second thing ये सब pollutant की तरह act करते हैं which will be reduced from environment. है ना, so pollution भी नहीं होगा. How it produce protein is microorganism absorbs all the carbon and nitrogen from it and converts them into high percentage protein content. Okay, कार्बन नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया और उसको कन्वर्ट कर लेता है हाई लेवल ऑफ प्रोटीन कंटेंट. Beside protein, single cell protein also contain high amount of vitamin B complex, minerals and fats. Microorganism used for single cell protein production are fungi, yeast, algae and bacteria. Just have a look once. Now we will see the names of fungi, yeast, algae, bacteria. कौन से है which can be used to produce SCP. Let's check it out. Fungi is Aspergillus niger, Trichoderma viride. Yeast is Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis. Algae Spirulina species, Chlorella pyrenoidosa. Bacteria is Methylophilus, Methylotrophus, Bacillus megastereum. Okay, so these are the fungi, yeast, algae and bacteria which can be used to produce single cell protein. Okay class, have a look. Hope you are writing. Last, what is the advantages of SCP? Advantages देखते हैं अभी. More biomass can be generated in less number of time. Microbes can be genetically modified, which can be varied by amino acid composition. Okay, it is estimated that it consists of 43 to 85% of it weight by weight basis. Okay, measurement करने का term है ये. Substrate, that is this substrate can be used for SCP production, which reduces the pollutant. What is pollutant? Okay, substances which causes pollution is called as pollutant. Okay, so it can be reduced. SCP beside protein is also rich in vitamin, minerals, amino acid and crude fiber. Okay, so यहाँ तक था आपको SCP. The next topic is biofortification. What is biofortification? Let's check out. Crops is produced which contain high amount of vitamin, mineral, fats. So अगर क्रॉप्स के अंदर हाई अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल, फैट्स रहेगा, सो बॉडी के अंदर कभी डेफिशिएंसी होगी ये तीन चीज की? नहीं, है ना. दैट प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन. बायोफोर्टिफिकेशन फोकसेस ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट रेदर देन क्वांटिटी. क्वांटिटी को वो लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना क्वालिटी को देते. क्वालिटी अच्छी रहेगी, कम खाओगे तो भी ज्यादा अच्छा आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा. यू विल बी फिट एंड हेल्दी. ठीक है, तो मेल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है, दैट इज न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, सो दैट कैन बी ओवरकम बाय बायोफोर्टिफिकेशन. प्रोटीन क्वालिटी इंक्रीजेस, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी increases, vitamin content and quality increases, and micronutrient content also increases by biofortification. Okay, these crops can also be produced by rDNA technology. recombinant DNA technology बताया था मैंने क्या है ये. दो सेपरेट ऑर्गेनिज्म का डीएनए के अंदर से जीन निकाल के, डीएनए का एक सेगमेंट कट करके दोनों डीएनए को ज्वाइन करके प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से आगे जो भी प्रोडक्शन होगा डिजायर्ड क्वालिटी हमें मिलेगी. rDNA टेक्नोलॉजी. ओके, बायोफोर्टिफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स है. लेट्स चेक इट आउट. द फर्स्ट एग्जांपल इज मेज. मेज कंसिस्ट ऑफ ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड. कौन से दो अमाइनो एसिड हो? लाइसिन एंड ट्राइप्टोफैन. व्हीट का नाम है एटलास 66. इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन. iron fortified rice contain 5 times more protein, 5 times more iron as compared to normal rice. Vegetable like spinach and carrot contain high amount of vitamin and mineral. Okay, and last, bitter gourd and tomato
with more amount of vitamin C is produced by IARI. Have a look. IARI stands for Indian Agricultural Research Institute. Okay, which develop different varieties of plants like vegetables and all. Okay, so this was SCP in biofortification. Next, we are going to jump on animal husbandry part. Okay, डेयरी फार्मिंग एंड ऑल बहुत सारे कंसेप्ट देखने वाले, तो नोट इट डाउन. Okay, students, so we are going to say topic of animal husbandry in details. Let's check out then what is animal husbandry. Rearing of animal for dairy and meat products is called as animal husbandry. Breed करते हैं animals को, raising the livestock. जितने भी animals है जैसे कि cow, dog, pigs, cattle, है ना, poultry farming, then leg formation, that is sericulture, apiculture, that is a bee rearing, सब इसके अंदर आ जाता है, hold together. ठीक है, breeding and raising livestock, cattle, pig, cow, horse, goats and many other animals जिसको रेयर करते हैं for profit purpose, they sell it then for meat and dairy products purpose. Poultry farming, beekeeping, sericulture. Sericulture silk, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए. ठीक है, इंडिया एंड चाइना, ओनली इंडिया एंड चाइना आर द टू कंट्री जो पूरे वर्ल्ड का 70% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कंट्रोल करता है. मीन्स जितने भी एनिमल्स उसमें 70% प्रोडक्शन कहाँ से होता है, इंडिया एंड चाइना. बट सरप्राइजिंगली 100 कितना करता है, ओनली 25%. तो बाकी कहाँ पे गया सर, दैट इज 45% नहीं है, कहाँ पे गया, दैट इज मिसमैनेजमेंट की वजह से. मैनी एनिमल्स डाई बिकॉज ऑफ डिजीज एंड बहुत सारे ऐसे टर्म्स है विच वी नीड टू इम्प्रूव इट. ओके, रिक्वायर्स प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड न्यू साइंस टेक्निक्स रिक्वायर्ड. ओके, तो मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड क्वालिटी मीट एंड गुड क्वालिटी ऑफ एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए वी रिक्वायर हाई यील्डिंग ब्रीड, अच्छी ब्रीड्स चाहिए. फूड रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं सिर्फ कैटल्स को पाला, कुछ भी थोड़ा बहुत खिलाया, ग्रासेस एंड ऑल एंड सेल कर दिया, नो. ओके, उनकी बॉडी के अंदर मीट फॉर्मेशन, मास मसल फॉर्मेशन नहीं होगा, सो प्रॉफिट इतना नहीं होगा. हेंस गुड फूड इज रिक्वायर्ड. फूड रिक्वायरमेंट प्लस न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, ऑयल केक्स एंड ऑल वगैरह खिलाते हैं कैटल्स एंड काउस को. क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन, वरना कोई डिजीज लग जाएगी. प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. वाटर, प्रॉपर वाटर, क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड वेटरनरी चेकअप रेगुलरली होना चाहिए. वैक्सीनेशन होने चाहिए जिससे कोई भी डिजीज उनको ना लग जाए. ठीक है, वेटरनरी एंड क्रॉस ब्रीड. क्रॉस ब्रीड, different crossing of different breeds to produce the good variety of hybrid. Development, production and preservation of product finally, and then distribution and marketing. Okay, after slaughtering the meat, ऐसा नहीं कि उसको कहीं पे भी रख दिया, no, it will spoil. उसको proper preserve करना पड़ता है, preservative डाल के, so that it can be kept for long period of time at freezing point. Okay, so this was about animal husbandry. In that there is a part called animal breeding. Animals को breed करते हैं, क्यों breed करते हैं, for profit purpose. अच्छा प्रोजेनी आएगा, that is अच्छा breed आएगा, hybrid आएगा, so profit अच्छा होगा. ठीक है, ब्रीडिंग एनिमल फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल, एनिमल्स का यील्ड इंक्रीज करने के लिए करते हैं. इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए. ब्रीडिंग इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल हैविंग सिमिलर कैरेक्टर. ओके, ब्रीडिंग किसमें होता है, एनिमल जिसके कैरेक्टर सिमिलर अपीयरेंस, then many other body characters similar, their size. Okay, then they breed it. Breed करने के बाद जो progeny आएगा, hybrid आएगा, it will be of superior quality. Okay, and finally that are breeded. It is done for improvement of breed. That is क्यों करते हैं high breeding, cross breeding, for increased milk production, good quality of meat and eggs per year. Okay, every year production should increase. Business में क्या चाहिए हमें, growth चाहिए ना हर साल. Like that, this is a type of business. It is a business. So every year जितना मिल्क प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ मीट एंड एग बढ़ेगा, प्रॉफिट उतना बढ़ेगा. सो उनका मेन एम ये, बट उसके साथ हाइजीन एंड सब मैनेजमेंट को भी हमें देखना पड़ता है. ओके, नाउ ब्रीडिंग इज ऑफ मेनली टू टाइप, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग. इन ब्रीडिंग मतलब ब्रीड तो होगा, अंदर अंदर होगा, नेम इटसेल्फ सजेस्ट इन ब्रीडिंग. तो ब्रीडिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर 4 to 6 जनरेशन, मतलब 4 to 6 जनरेशन के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को क्रॉस करवाना. द बेस्ट एग्जांपल इन ह्यूमंस इज अ कम्युनिटी कॉल्ड पारसी कम्युनिटी. आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, बट पारसी कम्युनिटी बहुत छोटी रहती है, वो वास्ट बड़ी नहीं हुई अभी तक. क्यों, उसका द मेजर रीजन इज दे मैरी इन देयर फैमिली, मतलब अपने ही कजिन भाई बहन से शादी कर लेते वो. सो ये क्या हुआ, एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर्स तो कॉमन रहे होंगे, ग्रैंडफादर के फादर वगैरह, जिससे ये बेबीज बच्चे आए, है ना. सो
अंदर ही अंदर शादी करने की वजह से there are many disadvantages which we'll discuss right now. So that is called as inbreeding. Breeding of species having closely related for 4 to 6 generation. This increases homozygosity. Homozygosity क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया था इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर, डेप्थ के अंदर आएगा। जीन के अंदर जो एलील रहेगा वो एकदम सेम रहेंगे, रेसेसिव वाले पूरे निकल जाएंगे। इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, प्योर लाइन्स इज क्रिएटेड। प्योर लाइन्स क्या है सर? प्योर लाइन मतलब जो कैरेक्टर्स है एकदम प्योर फॉर्म में रहेगी, होमोजाइगस फॉर्म में, दैट इज क्रिएटेड। ठीक है। हार्मफुल जीन्स जो भी है दैट विल बी फाइनली एलिमिनेटेड, निकल जाएंगे, बिकॉज कंटिन्यू अंदर ही फैमिली में ही मैरिज होने की वजह से जो भी हार्मफुल जीन है दैट विल बी पुश्ड ऑफ, निकल जाएगी। एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल जीन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, जो अच्छे जीन है वो एकदम सुपीरियर बन जाएंगे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। व्हाट इज द डीमेरिट्स? आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ नया चेंज नहीं मिला है, फैमिली में बार बार ब्रीडिंग हो रहा है। बिकॉज ऑफ इन ब्रीडिंग इट लीड्स टू फर्टिलिटी एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हैव अ लुक क्लास प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर राइटिंग इट। Okay, so this was inbreeding. Now let's check out outbreeding. Outbreeding is breeding of unrelated animal but having same common ancestor. Sorry, breed is same but they are unrelated animal having no common ancestor for 4 to 6 generation. इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैं कंसिडर करो कि कपल इज गेटिंग मैरिड, अ बॉय स्टेज इन महाराष्ट्र, गर्ल स्टेज इन राजस्थान। सो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या एंसेस्टर्स के? नहीं, 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी रिलेशन नहीं है, स्पीशीज भी सेम है। दैट इज कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग। बोलते ना आउटकास्ट में शादी करना, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आउटब्रीडिंग। ओके, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन बट ब्रीड इज सेम स्पीशीज। ओके, नाउ आउट क्रॉसिंग क्या है? क्लास पे अटेंशन वेरी क्लोजली, थोड़ा कंफ्यूजिंग है सो डोंट गेट कंफ्यूज। आउट क्रॉसिंग मतलब ब्रीडिंग ऑफ एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, स्पीशीज ही अलग है। Okay, the species is totally different. That is outcrossing. It is also called as interspecific hybridization. ठीक है, ये inbreeding में जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको निकालने के लिए we can breed it with outcross. Okay, so इसको अगर इसके साथ ब्रीड किया तो inbreeding डिप्रेशन, ये जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब डिफरेंट ब्रीड को क्रॉस करवा दे। ओके, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड is crossed with superior female of another breed. ठीक है, new animals of desired character is obtained. The best example is Bikaneri ewes and Marinorams. Sheep है दो, जिनको क्रॉस करवाया था to produce a new variety called as Hisardil. It is an example of sheep. This experiment was done in Punjab. Okay, ये पंजाब में किया था एक्सपेरिमेंट। Okay class, hope you are getting it. So now further we are going to see this interspecific hybridization in detail, then artificial insemination technique and multiple ovulation embryo transfer. Just pause this video and write it down. Okay class, so let's check out the 3 topics: interspecific hybridization, artificial insemination technique and multiple ovulation embryo transfer, MOE. As we have discussed interspecific hybridization right now, क्या होता है उसके अंदर ब्रीडिंग होता है एनिमल्स का 2 different but related species का। Okay, this इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट सक्सेसफुल ऑलवेज। मैंने बताया था क्रॉस बिटवीन डोंकी, मेल डोंकी जैकेस एंड फीमेल हॉर्स मेड produces mule which is sterile, cannot produce baby further. Okay, that is the example of interspecific hybridization. Next is artificial insemination technique. What is done here? मेल में से सीमेन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको या तो फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं टू प्रिजर्व इट, या तो इमीडिएटली उसको फीमेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। देखते हैं क्या है ये। इट इज कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन के कंट्रोल में रहता है, आर्टिफिशियली करवाते हैं। सीमेन फ्रॉम सुपीरियर मेल हैविंग गुड क्वालिटी, हाई मस्कुलर स्ट्रेंथ, हाई यील्डिंग मीट, एकदम एनर्जेटिक रहेगा। सो उसके सीमेन को लेते हैं, या तो आफ्टर टेकिंग आउट सीमेन आइदर दे फ्रोज इट, फ्रीज करते हैं उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पे, और अगर वो नहीं किया तो इमीडिएटली निकाल के विद इन फ्यू मिनट्स तुरंत इंजेक्ट करना पड़ता है इन फीमेल। ओके, अगर ये नहीं किया या तो फ्रीज करो या तो इमीडिएटली इंजेक्ट करो फीमेल के अंदर। अगर ये नहीं किया सो द स्ट्रक्चर ऑफ सीमेन विल डिस्ट्रॉय। ओके, स्पर्म विल लूज इट्स एनर्जी, इट विल डाई। सो इंजेक्टेड इन फीमेल इमीडिएटली। ओके,
नॉर्मल मीटिंग होता है प्रॉब्लम इज ओवरकम, जो भी प्रॉब्लम्स आती है नॉर्मल मीटिंग की दैट इज ओवरकम। ओके, आर्टिफिशियल इंजेक्ट करना होता है तो मेल फीमेल को दोनों को मीटिंग नहीं करवाना पड़ता, मेल एट हिज प्लेस, फीमेल एट हर प्लेस, एंड फाइनली सीमेन लेके इंजेक्ट करवा देते हैं। ओके, सो नॉर्मल मीटिंग की प्रॉब्लम इज सॉल्व। The last one is multiple ovulation embryo transfer. Ovulation, maturation of ovum and coming out is called as ovulation. ठीक है, ओवम के रिलेटेड है ये, तो ओव्यूलेशन बोलेंगे इसको। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे ओव्यूलेशन हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे एग्स मैच्योर्ड हो रहे हैं यहाँ पे, तो मल्टीपल एग मैच्योर एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करे बाद में। एम्ब्रियो कभी बनता है व्हेन स्पर्म कंबाइंस विद ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट। देखते क्या है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, successful production of hybrid by this method can be done. Let us take an example of cow. First of all, cow is injected, administered with hormone called FSH. Okay, this is the naturally produced in their body, but इसका लेवल बढ़ाने के लिए purposely इंजेक्ट करते हैं, called as follicle stimulating hormone. क्या बोलते हैं? Follicle stimulating hormone. ये follicles, हर एक follicles mature होते हैं ह्यूमन फीमेल के अंदर each month टू फॉर्म एंड मैच्योर एग। अगर फर्टिलाइज हुआ स्पर्म से तो आगे प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल फेज आता है या ब्लीडिंग होता है 4 डेज के लिए, वहां से लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो काउ इज एडमिनिस्टर्ड विद एफएसएच, क्या होगा? फॉलिकल्स मैच्योर होना स्टार्ट हो गए टू फॉर्म एग। यस, तो फॉलिकल स्टार्ट मैच्योरिंग। सुपर ओव्यूलेशन टेक प्लेस। सुपर ओव्यूलेशन, एक एग मैच्योर नहीं होगा, बहुत सारे एग्स मैच्योर हो गए। 6 to 8 eggs get matured at a time. ठीक है, 6 to 8 eggs matured in per cycle. So after maturation of egg, either the cow is mated normally, male female को एक साइड लाएंगे, काउ एंड बुल को, एंड फाइनली दे आर मेटेड नेचुरली, और नेचुरली नहीं करना है सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दिस टेक्निक के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं मेल का सीमेन इन फीमेल ट्रैक। ठीक है, जैसे ही स्पर्म कंबाइंस विद ओवम फॉर्म्स अ जाइगोट, वो जाइगोट डेवलप होगा एंड फाइनली इट फॉर्म्स अ स्टेज कॉल्ड एज ब्लास्टोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज ब्लास्टोसाइट। फाइनली after formation of blastocyte, that mass of cell is extracted non-surgically. सर्जरी करके एक्सट्रैक्ट नहीं करती, इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय सम मेथड नॉन सर्जिकली। ठीक है, रिकवर्ड एट 8 to 32 सेल स्टेज। जैसे ये 8 to 32 सेल स्टेज के बीच में आएगा, इट इज रिकवर्ड नॉन सर्जिकली। ठीक है, रिकवर करने के बाद क्या करेंगे? या तो कोई काउ के अंदर उसको एडमिनिस्टर करेंगे फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी काफ। ठीक है, सो दिस वाज द 3 टॉपिक, एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू सी डेयरी मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करना है एंड एवरीथिंग। बी कल्चर देखेंगे, एपिकल्चर एंड ऑल। जस्ट हैव अ लुक, प्लीज नोट इट डाउन। Okay, students, I decided we are going to see dairy farm management now. So let's have a look. Dairy farm management include production, processing and distribution of milk and its product. Okay, जितना भी है मिल्क के रिलेटेड उसके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना फॉर प्रॉफिट पर्पस। बट इसके लिए फॉर दिस प्रोडक्शन यू नीड गुड क्वालिटी ऑफ फूड, गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड, प्रॉपर वेंटिलेशन, एवरीथिंग इज नीडेड, विच वॉज द मैनेजमेंट as seen in previous video। इसके पहले जो दिखाया था मैंने लिख के, the management was there, वही सब मैनेजमेंट चाहिए for dairy production management also। ठीक है, now cows and buffalo is mostly used in India for milk production and dairy products। तो इंडियन काउ के 3 नाम है, साहिवाल, सिंधी, गिर, एंड एक्सोटिक ब्रीड मींस आउट ऑफ इंडिया की ब्रीड है, जर्सी, ब्राउन स्टेज एंड हॉल्स्टीन। ओके, एंड buffaloes is restricted to only some part of Asia। बफेलोज में इंडियन का नाम, जैसे 6 ब्रीड इन इंडियंस, जाफराबादी, महसाना, मोरा, नागपुरी, नील एंड सुरती। Okay, this all the breeds of Indian buffaloes produce too much high quality and quantity, good quantity and good quality of milk. Now they are feeded silage. Okay, उनका खाना legumes, grasses, maize and jawar को mix करके they are providing buffaloes and cow as the food. But इसके अंदर और nutrition बढ़ाने के लिए they add oil cakes, minerals, vitamins and salt. Proper cleanliness and hygiene is required, ventilation is required, proper cleaning, water every day it is needed to be washed with water so that कोई infection ना लग जाए, and many other factors, okay, as we have seen before. Next topic is poultry farm management, rearing of the bird species like chicken, duck, turkey, fowl for their eggs and meat. Okay, जो मैनेजमेंट यहाँ डेयरी फार्म में था, एनिमल हस्बेंड्री में था, सेम मैनेजमेंट भी यहीं पे रहेगा। ओके, बिकॉज है तो एनिमल सी, तो वेंटिलेशन, प्रॉपर
veterinary treatment, proper good food, high yielding breed, everything is required. ठीक है. So अगर आप बर्ड स्पीशीज को रेयर करो फॉर एग्स, सो कॉल्ड एज लेयर्स. एग्स के लिए रेयर करोगे तो कॉल्ड एज लेयर्स. एग्जांपल इज लेगॉन. मीट के लिए रेयर करोगे तो कॉल्ड एज ब्रॉयलर्स. एग्जांपल प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड, असील, ब्राह्मा एंड कड़कनाथ. ठीक है. कड़कनाथ चिकन इज वेरी फेमस इन इंडिया इफ यू नो देन. Proper breeding selection is required, suitable farm, water, ventilation, veterinary, all the management terms we have discussed earlier, that all things is required. Now we are going to see some breed name. American breed का नाम है Plymouth Rock, New Hampshire and Rhode Island Red. Asiatic breed is Brahma, Colchine and Langshan. Mediterranean breed is Leghorn and Minorca. English breed is Australorp, and finally Indian breed is Chittagong, Asil, ब्राह्मा एंड कड़कनाथ. ये सब नाम लर्न करने हैं क्लास आपको, इंपॉर्टेंट है ये बहुत. एंड नाउ पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड जो पोल्ट्री डिजीज है, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, देन फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, लेट्स चेक इट आउट. वायरल डिजीज है रेनिकेट, ब्रोंकाइटिस, बर्ड फ्लू, also called avian influenza. Few years back, bird flu has came in contact with humans through poultry animals, and millions of people died because of this bird flu. Bacterial infection, bacterial poultry diseases, pullorum, cholera, typhoid, TB, chronic renal disease, CRD, kidney related है ये, CRD, chronic renal disease and enteritis. Fungal diseases, aspergillosis, fevers, thrush. Parasitic is leak infection, roundworm, cachial worm infection, and protozoan disease is coccidiosis. Protozoan disease is coccidiosis. Okay, so please make a note. Next we are going to see fisheries, sericulture and beekeeping, bee rearing. Okay, called as apiculture. Okay class, so our next topic is apiculture, that is bee rearing and fisheries in detail. Let's check out. Then apiculture is the bee rearing of honey and the other products. Okay, so other products is honey wax, honey pollen, venom, propolis, that is the bee glue. Propolis is the bee glue, and royal jellies. Okay, royal jellies is used in asthma, secondary stage of cancer, and many other health disease के related royal jellies has been used. And bee is the best pollinating agent. Approx 80 to 85% of pollination जो होता है, it takes place with the help of bees. तो bee glue क्या है? Okay, so suppose you are getting ulcer or inflammation, माउथ में अल्सर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही बॉडी पे, सो इट कैन बी अप्लाइड ऑन दैट. तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा यूज है. Honey has a very high nutritional value and it is also used as a medicine. Okay, many people will suggest you as an Ayurvedic form that honey is good for health. Every day you should have 1 spoon. You should also have it with milk, और fat reduction के लिए warm water में डाल के भी you can consume it. Okay, so there are 4 species in India of bees: Apis dorsata, Apis florea, Apis mellifera and Apis indica. ठीक है. So Apis dorsata is called as rock bee or wild bee. Apis florea is called as little bee. Apis mellifera is called as Indian bee, and Apis indica is called as Indian bee. Out of this, Apis mellifera and Apis indica is domesticated bee species. क्यों? Because इंडिया के अंदर मेजोरिटी ये 2 ही स्पीशीज है जो पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प करती है, विच इज इन फ्रंट पिक्चर. 4 टाइप है, बस ज्यादा काम कौन में आता है? दिस 2. ओके, नाउ बी बॉक्स का आर्टिफिशियल बी चेम्बर यू कैन क्रिएट इट. अगर आपको बी हाइविंग के अंदर इंटरेस्ट है, सो यू कैन ऑल्सो पर्स एज अ करियर. इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर बिजनेस टू, बट यू शुड बी एक्सपीरियंस. उसके रिगार्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. बी हाइव का इमेज इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, जस्ट हैव अ लुक. अलग अलग सेपरेट चेम्बर्स है विद देयर सेपरेट नेम्स which have different functions. ठीक है, so it requires equipment: hive box, comb, foundation sheet, bee well, smoker bee, brush, gum shoots, uncapping knife, queen extruder, swarm nets and hive tool. These are the things which is required if you are indulged in apiculture business. Okay, हाँ, अगर naturally आप extract कर रहे हो, so then you require some equipment because that bee can sting you and put venom in your body, so it is dangerous too. It causes inflammation and too much pain and itching अगर आपको बी ने बाइट किया तो. ठीक है. आर्टिफिशियल बी हाइव. ओके, आर्टिफिशियल बी हाइव अगर आपको हाइविंग करना है, सो यू शुड फैमिलियर विद द हैबिटेट ऑफ बी, कि उनका नेचर कैसा होगा, हाउ यू शुड बिहेव व्हेन यू गो नियर द बी हाइव.
सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ओपन कर दिया, नो, नियर बाई फार्म, ओपन लैंड जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हो, गार्डन्स हो, फॉरेस्ट टाइप हो, वहां पे करना चाहिए ताकि बी आएगी फॉर पॉलिनेशन एंड यू कैन rear bee in your artificial chamber. So catching and location and bee catching के अंदर भी you should have some experience. Catching and hiving farm, collection of honey, bee wax, bee product, proper inspection, cleaning beehives, activity of bee and queen, conduction of brood and provision of water. So these are the things which we should be familiar with before opening a apiculture business. If you are rearing the bees artificially, okay, so Indian crops नहीं, all over the world में crops, but Indian crops के usually requires bee as a pollinator because एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब बी जंप करेगी to suck the nectar, that time that pollen grain sticks on its leg and pollination होता है naturally, ठीक है, wind के थ्रू भी होता है. Insect pollination के अंदर bee plays a very important role. Sunflower, mustard, cucumber, apple, mango, citrus and many other crops के अंदर bee act as a main pollinator. This increases the production of honey also in beehive, whether natural or artificial, and crop का production भी increase होता है because crop get pollinated and in return bee gets nectar which will produce honey alternately. Okay, so this was the apiculture. Now we are going to do a part fishery. Rearing of fish is called as fishery. ठीक है? Catching, processing, farming and marketing of fish plus other aquatic products, other aquatic animals. Fish के साथ कौन है? Prawns है, lobsters है, oysters, mussels and crab. Prawns and lobsters have very high market value class. हर एक कंट्री के अंदर प्रॉन्स एंड लॉबस्टर का रेट भी बहुत हाई होता है. There's a business point of view, fish से ज़्यादा you can earn more in prawns and lobster business all over the world. Now there's three type of fishery: inland fisheries, marine fishery and estuaries fisheries. Inland fisheries take place in fresh water. Marine fishery take place in sea water, salty water. What is estuaries? Estuaries is a point where river meets sea. The point where river meets sea, वहाँ पे जो farming होगी fish की, called as estuaries fishery. Okay. Now there is some names given of freshwater fish and marine water fish. Let's check out. Freshwater fish, Labia rohito, also called as rohu, katla, Sahina mirgala, also called as mirgala. Marine water के नाम है herpedon, called as Bombay duck, Sardinella, sardine, Rastraligal, mackerel, and Stromates, which is called as promfet. See, promfet is very costly. इसका भी value market में बहुत high है. Usually many people consume this all types of fish. Usually pomfret ज़्यादा. Normal language में भी say it's paplet. Okay, Hindi language में it is called as paplet. That is the pomfret. Okay. So now India की coastline, पूरे इंडिया के अंदर अगर फिशिंग करना तो coastline कितना है? 7,500 किलोमीटर. इतना बड़ा एरिया है हमारे इंडिया में फॉर जस्ट फिशरीज, फिशिंग करने के लिए. ठीक है. यूस्टेरिस के बारे में देखिए, रिवर मीट सी कहाँ पे है सर इंडिया में? सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल. सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल इज द पॉइंट ऑफ यूस्टेरी फिशरी वेयर रिवर इज मीटिंग अ सी. ठीक है. प्रिजर्वेशन, फिशिंग तो कर लिया बट आफ्टर फिश डाइज सो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा उसका, तो होने नहीं देना. ना अगर डिकम्पोज हो गई फिश सो वी कैन नॉट कंज्यूम इट. तो प्रिजर्व बाय चिलिंग और फ्रीजिंग, drying, sun dry, smoke dry, salting and canning. Canning, that is in absence of oxygen you are storing it. ठीक है. After going through some process. बाई प्रोडक्ट, फिश के बाई प्रोडक्ट्स क्या है? फिश ऑयल, फिश ग्वेनो, फिश मीट, isinglass, fertilizer. Fish guano, okay, it is a type of fertilizer produced by fish waste and fish meal. जो भी बचा हुआ रहता है उसको सॉइल के अंदर it is formed as a fertilizer called as fish guano. Isinglass is a product which is used in preparation of glue and also used in the filtration of brewery industries, that is alcohol industry के अंदर बियर फिल्टर करने के लिए भी ये काम आता है isinglass. Prawns and lobster has very high market value and is all the byproduct is used in paint, soap, oil and medicine, because of which it is also increasing employment all around the globe. Okay, so hope you have written these notes. बहुत important है, go through it. And also please read once from textbook. Okay.
Okay, student, let's start then. So our topic of today is sericulture and lag culture. Okay, we are going to do this topic right now. Sericulture is the production of silk. Silk किससे मिलेगा? Silkworm से. Okay, so rearing of silkworm and production of silk has provided too much employment, a very big business in India. It requires proper knowledge and there is no age criteria. Once a person is matured enough to do this work, so old person, handicapped person, any person can do this work, just require a proper skill and knowledge. Okay, all age person can do it. It is the oldest business, one of the oldest business of India. The best quality is mulberry silk produced by Bombyx Mori. Okay, Bombyx Mori is the best one, and Tussar silk and Eri silk is of inferior quality. So ये तीन टाइप के सिल्क है, Bombyx Mori, Tussar silk and Eri silk. Okay, so it requires constant watch. Why? Because we have to check out that it is a worm, silk worm है ये. So sparrow, crow, and many other birds, ants, है ना, just walk around to eat that worm. So you have to avoid that. Okay. Silkworm requires constant watch. Also, we have to maintain hygiene from protozoan disease, fungal disease, viral disease. इसके ऊपर इन्फेक्ट ना कर दे. अगर इन्फेक्शन हो गया, so that worm will die. Okay. Silkworm larvae can get infected by protozoan virus and fungi. Other birds can also attack on it. If you see the cycle, female lays eggs, very small eggs on mulberry leaf. Okay, then after egg hatches, that larvae eats that mulberry leaf and converts itself in few days to cocoon. And cocoon finally bursts and forms a butterfly. But here, when cocoon is finally going to hatch, before that, the person doing this business of sericulture, they takes cocoon and puts in boiling water. तो बॉइलिंग वाटर में डालने की वजह से दैट वर्म विल डाई एंड वो सिल्क थ्रेड विल गेट लूज. सो सिल्क थ्रेड लूज हो जाएगा, सो इट कैन बी फॉर्म्ड अ प्रॉपर रील एंड इट कैन बी प्रोड्यूस एंड फाइनली मार्केटेड इन मार्केट. ठीक है, so this is the sericulture. Next is lag culture. Lag is produced by insect which is very small and they all stay together in colonial habitat called Tacardia laca. क्या बोलते हैं? Tacardia laca. Female lag insect releases some sticky resin-like substance from dermal gland. Okay, dermal surface. ठीक है, this female lag insects feeds on twigs like bear, people, pallas, kulsum, babul trees. ठीक है, after feeding they secrete the pink color resin which is hard. Actually, first of all it is a liquid like, but as it comes in contact with air, it becomes hard. Lag का कंपोनेंट क्या है सर? कंपोनेंट ऑफ लैग इज शुगर, वाटर, मिनरल एंड अल्कलाइन सब्सटेंस. अल्कलाइन इज द बेसिक सब्सटेंस. ठीक है, नेचुरल लैग जो ऑब्टेन होगा दैट इज ऑलवेज कंटामिनेटेड. इट इज प्योर बट इट इज ऑलवेज कंटामिनेटेड. ठीक है, सो कंटामिनेशन को हटाना हाउ? तो shellac which is the pure form of natural lag is obtained by washing and filtering. पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे वर्ल्ड में 85% लैग का प्रोडक्शन इज डन बाय इंडिया. Yes, 85% lag production all around the globe is done by India. It is used in many products like to produce bangles, toys, inks, mirror, woodworks, etc. Okay, and lag production requires artificial inoculation of plant. What is this artificial inoculation of plant? Okay, plant को अगर हमने artificially वहाँ पे rear करवा के रखा है, that is a hybrid या तो कोई भी अच्छा क्वालिटी का प्लांट रखा है, so lag will feed on it. Because of feeding, that lag will get good nutrition. And hence finally the lag which we will obtain for business or whatever purpose, it will be of best quality as well as in best quantity. Okay, so quality and quantity both will get improved by this. Okay class, so after this we are going to do microbes part. So here I am completing the part 1 of this chapter. Part 2 will be released soon. So before coming to part 2, revise and learn all the concept of this chapter very thoroughly, and please make notes if you have not made till now. Okay, just have a look.